एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ सच्ची सुच्ची शख्सियत ਦੇ मालिक सरदार जरनैल सिंह जी पिछले समय अपने स्वासां ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ परमात्मा ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। सरदार जरनैल सिंह जी हुणां ਦਾ जन्म पिता सरदार ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ हुणां ਦੇ ਘਰ माता परसिंद कौर हुणां ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ बहुत ही मेहनती ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ प्रतिभा ਦੇ मालिक सन। ਆਪ ਜੀ ਹੁਣੀ 4 ਭਰਾ ਸਨ। सरदार जरनैल सिंह जी, सूबेदार सरदार चेतन सिंह जी USA, सरदार शिंदरपाल सिंह जी UK, सरदार जसविंदर सिंह जी USA ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ बेटी बलजीत कौर ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों ਨੂੰ खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया ਅਤੇ समाज ਦੇ ਚੰਗੇ नागरिक बनाया। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ बेटे कुलजीत सिंह ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ USA ਵਿਖੇ ਸੈੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ बेटे ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਟਲੀ ਵਿਖੇ ਸੈੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ बेटी बलजीत कौर बेल्जियम ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। सरदार जरनैल सिंह जी बहुत ही मिठ बोलड़े सुभाਅ ਦੇ मालिक सन ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲਕਾ विधायक पुलथ सुखपाल खैरा, बीबी जगीर कौर, राणा गुरजीत सिंह विधायक कपूरथला पहुंचे ਅਤੇ परिवार नाल दुख साझा किया। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ सरदार जरनैल सिंह जी जोड़ा कि पिछले साल अकाल चलाना कर गए थे, उन्होंने पहली बरसी में कतल होया। जरनैल सिंह जी एक बहुत सुलझे हुए, बहुत नेक नीयत, ठंडे सुभाव के व्यक्ति सन। पिंड के गुरुद्वारा साहब की शायद 18 साल सेवा की बतौर प्रधान,
बहुत सच्चे सुचे ते बहुत ही इंसाफ पसंद ते गुरु की रजा में रहने वाले व्यक्ति सन। मेरा काफ़ी बार उन्होंने मेल मिलाप होया क्योंकि जो इलेक्शन लड़ते हैं तो हर पिंड जाना पैंदा, हर पिंड वाले को साढ़े तक आना जाना पैंदा। बहुत सारे पिंड के मसले होने ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਨਿਬੜਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਚਨਚੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੇਵਕਤ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਭਗ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਭਾਵਾਂ ਪਰ ਹੋਣ ਅੱਛੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰਾਏ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਗਏ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਰਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣੇ, ਸਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਭਰਾ ਦੇਖੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕਦਮੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਦਮੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਜਿੰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਸਤ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਰਿਚੁਅਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਘੱਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਛਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਮਜਲੂਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਅਰਥ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਫਿਰ ਅਰਥ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਿਰ ਅਰਥ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਝੂਠ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਭ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਠੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਰੂਹਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ज़्यादा मैं लंबा नहीं जाना क्योंकि बहुत सारी गल्लां अच्छियां जिन्होंने पहला जिक्र किया कि विद्वानों ने गल करनी है, बहुत अच्छी गल है। सुनना सुन के असर भी करना चाहिए ना, सुन के फिर रूटीन चले गए तो काम वही किया सारा, चुगलियां कीतियां, गलत काम किया, निंदिया की, अगेन जीरो बैक टू स्क्वायर वन कहते हैं अंग्रेजी के। इस करके इन्हों की गल्लां अच्छियां सुनो। ये नहीं मैं कहता कि आप जोड़े ना आप सारे क्रिस्ती हैं, 100% कोई भी नहीं है कम इन्हों के उपदेश नाल चल सकता, क्योंकि आप रोज़ जिंदगी बसत करना तो आप 100 नहीं कर सकते। घट्टो घट्ट कभी नेड़े जेडे अपनी जिंदगी व्यतीत करने की कोशिश करांगे तो अपने आप जिंदगी को संतुष्टि मिलती है। तो मैं क्योंकि मैंने बहुत सारे पिंडों जाना, मैं गिनावां तो फिर बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो इधरों बस्सी तो होकर बेगोवाल होकर धालीवाल वेट कल संदीप सिंह धालीवाल जोड़ा एक पिछले साल 2019 ह्यूस्टन शहर अमेरिका मारे गया, डिप्टी शेरिफ सीगा, उन्होंने गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई सी। कल उसका भी बरसी है तो मैं क्योंकि कल मैं दिल्ली जाना, मेरा एनफोर्समेंट डायरैक्टरेट की तहकीकात चलती है, लेट किया साढ़े बड़ा किया होया तो मैं उन्होंने हाजिरी लगा जाना। सो उस तो बाद फिर अगे पिछले हो के एक बार जाना अपना समा इजाजत नहीं दिंदा। मैं सारे परिवार को यकीन दिलाना चाहता सारे असं तुहाडे नाल है सारे, और तुहाडे किसी जो भी तुहाडा जिंदगी के तुहानूं चुनौतियां आउंदियां ने, तुहाडे ते कोई मुश्किल आउंदी, असीं तुहाडे नाल खड़े हैं। और साडी मेरी यही कामना वाहिगुरू के चरणों च कि पिछली हुई आत्मा को परमात्मा तुसीं अपने चरणों च निवास बख्शो, आत्मक शांति बख्शो, पिछे परिवार को चढ़ती कला बख्शो। बस इनियां मेरियां बेनतियां प्रवान करनी, मैंने लाना पैना इस मेरा दिल तो करता था कि अच्छियां गल्लां मैं भी सुना, क्योंकि हर बंदे खामियां ने, कोई 100 कला संपूर्ण नहीं करता, पर जिन्नियां खामियां घटा सकते हैं, जिन्ना चंगा कर सकते हैं, उहदे नाल ही अपनी जिंदगी सफल हो सकती है। सो सारे परिवार नाल दिलियां गहराइयां तो हमदर्दी करता होया क्षमा दा करता जदों साडे सारियां दे बहुत प्यार वाले गुरु घर के महान सेवक भाई जरनैल सिंह जी सानू सारियां नूं सजीवी विछोड़ा दे के हम और आज आप सारे सरकार जो पिता जी सरदार बनता सिंह जी, वीर चेतन सिंह जी, सरदार शिंदरपाल सिंह जी, सरदार जसविंदर सिंह जी, सारे परिवार के नाल ये दुख वटाते हुए अपने गुरु की हजूरी में धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के हजूरी हाजिरी कर रहे हैं। सबना मरना आया विछोड़ा सकना, इस धरती का सब तो बड़ा सच ये मौत। अज का जो समागम है ये दो प्रयोजन, पहला प्रयोजन है अपने वीर भाई जरनैल सिंह जी के नियमित गुरु के चरणों में अरदस्त होया जाए। दूसरा प्रयोजन है इस मौत के सच को दृढ़ करना कि संग चलत है हम भी चलना। आप जी ने शायद ये कथा पहला सुनी होगी, कहते ने धर्मराजे ने युधिष्ठिर ने बुला के पूछा कि युधिष्ठिर
तैनों मात लोक में धर्म पुत्र कहते सन। धर्म पुत्र का अर्थ हो गया मेरा पुत्र। ते पुत्र एक गल दस, तू मात लोक विचों हो के आया है, कोई अचरज गल वेखी है? जिहड़ी सीना बसीना कथा साडे तक आई है, मैं साझी कर रहा तुहाडे नाल। युधिष्ठिर कहने लगा, हाँ पिता जी, मैं बड़ी अजीब गल दुनिया में देख के आया कि सारियां नूं पता है मर जाना है, सारियां नूं पता है मर जाना है, पर उत्थे मरने वास्ते तैयार कोई नहीं है। इस गल नूं मानदा कोई नहीं है। जदों गल होएगी वो चला गया जी, उसकी सेहत नहीं सी ठीक, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ हज़ार कारण गिण के दसांगे वो क्यों चला गया। पर मैं आप जी को बेनती करना, मौत का संबंध ना किसी एक्सीडेंट नाल, ना किसी बीमारी नाल। मत इस भुलेखे में पैना भी इस बीमारी वाला बंदा मर जाता है, इहो जिहे एक्सीडेंट वाला बंदा मर जाता है, ये सब झूठ है। मरण वास्ते देखो साडे इंडिया दे विच तां कोई ऐसे सिस्टम है नहीं, या इहो कह लईए सिस्टम हैगा पर लागू नहीं है। पर जितों वीर जी चेतन सिंह होरी आए हैं, शिंदरपाल सिंह होरी, जसविंदर सिंह होरी आए हैं, ये दस सकते अमेरिका दे विच डेथ सर्टिफिकेट इशू होने तो बाद संस्कार, बॉडी का संस्कार नहीं हो सकता, पहला डेथ सर्टिफिकेट इशू होएगा। और डेथ सर्टिफिकेट दे विच एक कॉलम है डेथ ऑफ काज, मौत किवें होई, बीमारी नाल होई, एक्सीडेंट नाल होई, किसी फूड पॉइजन नाल होई। मेरा अपना सन वर्जीनिया रहिंदा सी, मेरे तो छोटा सी, अज उसकी मौत को भी 13 साल, मुश्किल 40-45 साल की उम्र होनी। तुसी यकीन करो वो डेथ सर्टिफिकेट से लिखे है डेथ ऑफ काज, अगे लिखे 2 काज, कोई कारण ही नहीं है। मौत वास्ते कारण की भी लोड़ नहीं है। सो मैं बेनती कर रहा सी, अज का जिहड़ा ये समागम है, इसका पहला मनोरथ ये है कि वो वीर जरनैल सिंह जिन्हें 18 साल गुरु घर की सेवा की, परिवार की संभाल की, और अपने गुरुदेव पिता मैं दस रहा सी वीर जी जसविंदर सिंह, सवेरे उठ के इशनान कराना, पिता के कपड़े पाने, सिर ते दस्तार बननी, फिर गुरुद्वारे जाना। जी गल कहना सब कह के गया ना, पहला गुरुदेव पिता है। अगर ये गुरुदेव पिता जन्म ना देता अज के मनुख को पता होना चाहिए कि गुरुद्वारे भी नहीं जा सकता। उन्हां दी याद विच उन्हां दा पहला बरसी समागम उन्हां दे गृह पिंड अकाला विखे उन्हां दे समूह परिवार वल्लों, जिन्हां विच सूबेदार सरदार चेतन सिंह जी USA, शिंदरपाल सिंह UK, जसविंदर सिंह UK, रंजीत कौर, कुलजीत सिंह USA, रंजीत सिंह USA, परमिंदरजीत सिंह, बलजीत कौर अते उन्हां दे समूह परिवार वल्लों उन्हां दे गृह पिंड अकाला नेड़े पुलत्थ कपूरथला विखे करवाया गया, जिस विच भाई साहब भाई देविंदर सिंह सोढी हुणां दे कीर्तनी जथे वल्लों अपने वैरागमी कीर्तन राही सरदार जरनैल सिंह जी हुणां नूं शरदा दे फुल पेंट कीते। Yeah.
बिहारी आया हुक्म पार ब्रह्मा छोड़ चले आए के बिहारी शोभा रूपवंत जवानी बहुत दर्द हस्तिय तोड़े लाल लाख बयानी आगे करने काम नया छोड़ चले अब पानी छोड़ चले आए छोड़ चले आए के बिहारी आया हुक्म पार ब्रह्मा छोड़ चले आए के बिहारी एक बिना चित लाइए उठत बैठ सोवत जागत सदा सदा हर जाइए उठत बैठ सोवत जागत सदा सदा हर जाइए आया हुक्म पार ब्रह्मा छोड़ चले किन्ना भी बलवान की तलवार एक ना एक दिन चार पाली चुप के शमशान घाट वालों है मल कर मौत जहाब सी सब दरवाजे आप किनिया उम्मीदा लाने आ भी करना वो भी करना पर प्यारे तो मौत आसा दे उम्मीदा दे सारे दरवाजे बन के आ जाते जेड़े सज्जन मित्र भैन भरा हर वेले दुख सुख विच नाल खड़ोते से जदों मौत ने कोटा खड़काया सारे हाथ बनी खड़ोते रहे हाँ भाई
माना ते सारे गुरु ग्रंथ साहिब जी की कहते अमल दे कीते दुनी विच दर गया है। छे दुनिया विच आके चंगी करनी कमाई की दरगाह विच काम आए। मरना सारे जेड़ा शरीर करके आया उन्हें जाना। बैराग भी समा लो बैराग में पास सुनावा तुसी कहने बैठे एकाग्रता पाना है। बाबा नानक भाई बाला ते भाई मरदाना कितना प्यारा साथ है। 50 साल तो भी ज्यादा समा कि इकट्ठे रहे। मित्रों के मित्र ने ते सेवकों के सेवक ने पर सत्संगी एक दिन मौत आई। उस मौत ने एडा गंभीरा के प्यारा सा पलंग में ही तोड़ के रख दिया। पलंग में अफगानिस्तान के विच एक कुरम नदी ते कुरम नदी के किनारे ते तीनों ही जाने तुरे हैं। आओ भावना बनाए ते भावना की अख नाल गुरु के दर्शन करे। अपने बाबा नानक जी पिछे भाई बाला ते मरदाना तुरदिया मरदाना पुछ करदा है कहना बाबा घर कदों जाना। गुरु नानक कहते मरदाने आ तू साडे नालों पहला जाना। हाँ बई तेरा जाना ते साडे नालों पहला ही लिखिया होया है। जदों गुरु नानक ने इन्नी गल आखी ते मरदाने का हिरदा काम बाबा हुण ही धक्का मार लगे। मरदाने धक्के कौन मारदा है? शरीरां दी सांझ टुटण वाली है। ताइयों ही तेनू घर पिया याद आउंदा। इस तरह गल्लां करदे हो तुरे जाते। जदों बाबा जी पछां वेखदे कोई जवाब नहीं दिता कि मरदाने ने नेत्र भी भरे सन ते हटबोरे भी लगदा सी। मरदाने मौत कोलों डर गया। तेरा मरण को दिल नहीं करता। वो कहता नहीं बाबा मौत कोलों कौन डरदा है? छेड़ी कुछ घड़ियां आने हुणे आ जाए। फिर एडा बैराग क्यों है? कहता है मेरे गुरु नानक मौत कोलों ते डर नहीं लगता पर बाबा तेरे चरण छड़न नूं दिल नहीं करता। जे अज विछड़ गए किहड़े युगां विच मिला सच्ची है। हुण एवें जे गुरु नानक इहनूं भरा नहीं ना कहते। कोई लालच नहीं मरदाने नूं ना पैसे दा ना औहदे दा। घर विच बेशक मसला है कदी रोटी दा कदी सौदे दा। नानक ना कला रह जावे ओते की विच आउंदा है मरदाने वर्गा मित्र नानक दे हिस्से आउंदा है। जे अज विछड़ गए ते कदों मिला? बाबा नानक जी कहने लगे मरदाने तू प्यार मेरे नाल मौत कर।
ताई तेन बुलावना। इस तरह गल्लां करते करते वो पूर्व शहर के अंदर चले गए। जिस तरह आप कहते कि जेड़ा दाना पानी लिखिया वो डूब गया, तीनों जाने बैठे भोजन छक आओ भावना बनाओ कीर्तन का रस लो। जिन्हें तुम बैठे जोड़ो मना दिया बैठे तो हो ही मन जोड़ोगे तो कीर्तन का रस आएगा। तो जब गुरु के प्यार में चले जाओगे तो गर्मी भी भुल जाओगे। जोड़ो मना दिया तीनों जाने बैठे प्रशादा छक रहे थे। बाबा जी की कहते मर्दाने आ सारी जिंदगी कट्ठिया बह के खादा है, अज तो बाद तीन मित्रा ने इस तरह रल के नहीं बहना। ये मेरा आखिरी भोजन है और अज के बाद हुण मर्दाने कोलों गराही नहीं टुटदी। कदी गुरु नानक वल वेखदा है ते कदी भाई बाले वल वेखदा। कैसी मौत की कहानी। उठ के टुरे, जदों तुरे तुरे जाते शहर के बाहर आए ना ते तुरदियां तुरदियां मेरे गुरु नानक मर्दाने की बांह पकड़ बैठे। मर्दानिया मुक गई शरीरां दी खाम है। वो कहता हाँ महाराज मैनू पता है रामगढ़ मैनू लैण आए ने, पर ए मेरे बाबा जिन्ना चिर तू ना इशारा कर देवे कि मजाल है कोई मर्दाने नू तेरे चरणों में तो लै जाए। मौत का रिश्ता आया है पर तेरे इशारे बगैर लजा नहीं। बाबा जी कहते मर्दाने जमीन से लेट जा। जदों बाबा जी ने इन्हीं गल आखी कि कैसा प्यार से मर्दाने ने अपनी गल विचों रवाब रहा कोल खलोता भाई बाला। भाई बाले के हत्थां ते रवाब रखदा है, कहंदा बालिया ऐ है मेरी रवाब, कोई ख्याल रखी मेरे गुरु नानक दा। इन्हां नूं कीर्तन दी भुख लगदी है, तू रज रज के कीर्तन सुनाई। इन्हों भुख लगती है कीर्तन की, ख्याल जमीन से ले प्राण पखेरू शरीर विचों उड़ गए। सत्संगी सारी जिंदगी जेड़ा मित्र हर वेले कदम नाल कदम ला के टुरदा रहा, अज पलां विच ही छाप सकदा। कफन की पाउंदे बाबा जी के मोढे ते जिहड़ी चदर रखी हुई है ना खोल के नाले मर्दाने दे उपर पाई जाते ने ते नाले कहते बालिया अपना पिंड तो बहुत दूर है, इत्थे कौन अपना कोई भी नहीं परदेश। अब भाई बाले वाली साखी ते इंज लिखिया है, दोनों जाने मर्दाने दे संस्कार वास्ते लकड़ा गड्डियां करते थे। भाई बाला जी ने मोढे ते रखियां लकड़ा ते लकड़ा दे ओले मुंह करके ना गुरु नानक तो चोरी चोरी रोई जाता है। बाबा तू ते आप हुण तेरे वर्गा जिगरा मेरा ते नहीं ना हो सकता, तू तो रब है।
असी संसारी दीव मोह प्यार में बने हुए हाँ। अज कैसा मौत ने साथ तोड़ दिता। लकड़ा चोरी है जदों अग दी ना बाबा जी ने लाटा निकलियां शरीर की वेखिया और सामने बैठे भाई बाला है मर्दानी दी रवाम नाल सिर सुटिया होया है बैराग करी जाती बालिया तू मौत को वेख के डर गया इन्नी पानी ते सिमरन वाला मौत को वेख के डर गया। सिख पंथ की महान शख्सियत सोमनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब बीबी जगीर कौर जी कुछ संतां विच महाराज गए उन्होंने जियो आया जोड़ियो मना भी तो मौत को वेख के डर गया। बिनती सुनियो बिनती सुनी मत कालो मत कालो चमकी खबरी बिनती बेनती की शब्द सुना के मैं फिर समाप्ति करना चाहता क्योंकि प्रधान साहब की जगीर कौर जी गुजरे ने उन्होंने भी बहुत सारे रजेवे होंगे कई जगह संगत उन्होंने मेल मिलाप करना होता है थोड़े नाल भी सांझ पानी है इसलिए मैं अपने समय तो पहले कि बेनती का शब्द सुना के समाप्ति कर रहा है। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇੜਿਓਂ ਦੂਰੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਗਾਹ ਚਲੇ ਐ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਓ ਤੇ ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰੀ ਨਾ ਕਰਿਓ लेखे जोखे वाले कागज वाल झात ना मारियो साडी बेनती जोदरी इस वेले सुन के इस रूह चरना च नवास बख्श देना बेनती रूपी शब्द शरदा नाल सुन मत कालो
तेरे बेनती सुने, तेरे बेनती सुने संत बाबा प्रेम सिंह जी पुराने वाले जिन्होंने सानू मने का कुछ दिता, साडा जीवन सुधारन वास्ते, आपसी प्यार देने वास्ते, सानू सिक्ख्या दी सहूलतां देने वास्ते, अपना जीवन दियां जो सानू दातां दे के गए, उन्हां तों सोई होई साडे परम सत्कारयोग साडे बीबी जगीर कौर जी, जो इस वेले सरमौर संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान होने के नाते सिख कौम दी जो जिम्मेवारियां ने, अपनी इस कौम दी जो जिम्मेवारियां ने, उन्होंने बखूबी निभाते हुए जिथे अपने जीवन का योगदान पा रहे हैं, अभी उन्होंने भी बहुत धन्यवादी हाँ और उन्होंने भी यो ही आस से विराग करते हैं कि जिथे अज तुम गुरु ग्रंथ साहिब की हाजरी में नतमस्तक होए हो, संगत के रूप में आए हो, इस परिवार के नाल अपने दुख का इजहार करने वास्ते और उस अपने विछड़े वीर जरनैल सिंह को श्रद्धांजलि के बोलों के रूप में एक अरदास बेनती करने आए हो, उन्होंने की यह बेनती प्रमाण होवे और उन्होंने दी सेवावां जो सिख दुनिया भर में छन, उन्होंने चलाउण दा, अपनी सेवावां देण दा, अपनी सेवा करने का बल उद्यम जो है धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी देते रहन। संस्था का सहयोग से प्यार होवे, मैं बेनती करना अपने सरकारयोग साडे बीबी जगीर कौर जी। जीवन ਅਤੇ मौत की सच्चाई के संबंध में धन गुरु नानक साहब जी के उस वेले के बोल साझे करते सन, जो 50 साल गुरु नानक साहब जी नाल इस महान शख्सियत ने बताए, रबाब बजाई, धन गुरु नानक साहब जी ने कीर्तन किया, उस भाई साहब भाई मर्दाना जी को याद करके उस समय के ऐलान कर रहे सन, क्योंकि इस समय ऐसे है जिस समय के अंदर वही कथावां कीतियां जांदियां जिहड़ियां कथावां दे नाल सानू स्वजी प्राप्त होती है तो जीवन के सच ते मौत की सच्चाई का पता लगता है। लंबा समा नहीं मैं आपके नाल गुरमत करना शुरू करा। सब तो पहला तो पिछला समा 1.5 साल का सारी संगत ने देशा विदेशों बहुत पीड़ा भरिया बिताया, बहुत बड़िया आफत आई, बहुत बड़ा संकट आया, दुनिया के कोने कोने बड़िया प्यारियां रूहां साढ़े तो विछड़ गई। कोविड-19 करके असीं बहुते इकट्ठ एक दूजे नाल साझे नहीं कर सके, बहुत के दुख तकलीफों में इकट्ठे नहीं हो सके। उन्होंने समय दे विच ही साडा बहुत सत्कारयोग वीर सरदार जरनैल सिंह जी, जिहड़ा हसू हसू करने वाला चेहरा सी, जिहदे पंडाल में बैठण नाल स्टेज पे बैठण दे नाल स्टेज एक वक्री दिख जाती सी, और जिस तरह गुरु घर नाल इन्ना प्यार सीगा कि जदों भी कभी आवाज़ मारनी उन्होंने हमेशा ही गुरु घर वास्ते अपना आपा बांधने वास्ते तैयार हो जाते थे। पर जवानी में उसका चले जाना परिवार वास्ते बहुत बड़ी घाट है। मैं देख रही हूँ जब बच्चा सिखती मैंने पुराना समा याद आ गया जब मैं पहली चोण 1991 लड़ी, उस तो भी पहला जो ये इन्ने डाढ़े सुभाव के सन कि पिंड सारे पिंड ऐ नाल लैके तुर पैना ते हमेशा ही अपनी छवि जड़ी से जमा के रखनी सी। अज भी मैनू वही उन्हें देख तो लग रहा है कि परिवार में भी जिस तरह उन्होंने बड़ा बोलबाला ते बड़ी बड़ी धाट इस नगर में भी है, इलाके में भी है। जो वो जवान पुत्र तुरया बड़ी बड़ी उस वेले सट बची, मैं महसूस करती हैं कि परिवार में तो घाट है ही है, उत्थे पिंड वाले इलाके वाले यहो जी शख्सियत का ज्ञान का बड़ा बड़ा घाटा पिंड है। खास करके साढ़े वर्गे भी जोड़े लोग होंगे उन्होंने भी एक किस्म के पर टुट जाते हैं जो कोई शख्सियत चली जाती है।
क्योंकि असीं जदों साझा साडियां एक दूजे नाल जुड़ियां हुंदियां बहुत बड़ी जिहड़ी दर्द की कहानी बन जाती है। मैं देख रही हूँ सरदार चेतन सिंह जी सूबेदार साहब, उन्होंने भरा दूसरे पार्ट जसविंदर सिंह जी, सारे भरा बैठे है, रिश्तेदार बैठे है, भैन भरा बैठे है, पुत्र विदेशा च है, पूरा परिवार ही विदेशा च। और जदों भी कभी बाबा प्रेम सिंह के स्थान के उत्ते आवाज मारते सारा परिवार उत्ते बड़ी श्रद्धा और सत्कार के नाल आके मत्था टेकते। जे मैं किसी पिछले इतिहास को शुरू कर देवां लंबा समा लग जाना। मैं तो एको बेनती करांगी साथ संगत जी, ये जीवन जिहड़ा है ये केवल ते केवल सानू पातशाह ने अपने नाम का रंग के बिताना सिखाया। भई प्राप्त मानव दे हुरिया गोबे मिलन की ये तेरी परी है। संग चलता हम भी चलना, दूर कवन से रूप पर मरना। वो चले गए संसार चो, असीं भी सारे संसार चले जाना। सानू हलूंदे मेरे पातशाह सबना सौरे बनना सामू कला बढ़ा। असीं सारे संसार नूं छड्ड के चले जाना। इत्थे सानू चंगियाइयां ते बुराइयां जिहड़ियां असीं करके जाने हैं वही पिछे याद कीतियां जांदियां। कोई नहीं पुछदा कि बंदा कितना करोड़ापति सी, ये कितनी कुछ जायदाद का मालक सी। असीं सारे किसी के सुभाव नूं याद करते हैं, किसी की सेवा नूं याद करते हैं, किसी की कुर्बानी नूं याद करते हैं, किसी की समाज में दित्ती देन नूं याद करते हैं, किसी ने गुरु नाल जिन्ना प्यार पाया श्रद्धा वंडी है उन्होंने याद कर दिया। तो अज सारा भरा सारे परिवार विदेशों चो आके अपने वीर नूं श्रद्धा के फुल भेंट कर रहे हैं। सारा नगर बैठा है, इलाका निवासी बैठा है। मैं बापू सरदार बलता सिंह जी नाल जिथे ये दुख साझा करती हैं, परिवार नाल दुख साझा करती हैं, गुरु की अरदास भी है सच्चे पातशाह इस परिवार नूं चढ़ती कला बख्शी करनी, हमेशा देशा विदेशों देश की कौम की सेवा का बल बख्शी करना, अपने नाम नाल जोड़ी रखना। क्योंकि मेरी मजबूरी है थोड़ी, जिस तरह भाई साहब सोडी साहब कह रहे सन कि मजबूरियां कई होंगी। तुहानूं भी पता सरदार महेंद्र सिंह जी चेयरमैन अपने राहबर पीर बख्श वाले, उन्होंने धर्म पत्नी विछोड़ा देगी बीबी महेंद्र कौर जी, उन्होंने भोग है अर्बन स्टेट फेस 1 दे विच। उन्होंने मैंने कहा कि 2 बजे तक असीं उड़ीक करांगे। तो इस करके साथ संगत जी मैं उत्ते क्योंकि हाजिरी भरनी है, तुहाडा ही परिवार है, तुसीं सारे एक वो वास्ते मैनूं आप जी को छुट्टी लैनी पैनी है। हिमा जी चाची को अरदास करिए सारे जाने संबत साहा लिखिया मिलकर पालो दे देहो सजन आशीषड़ियां जी हो गए साहिब समेत सरपंच साहब समिति मैंबर सारे तुसीं विराजमान हो। गुरु कृपा करे सब दी हाजिरी प्रवान करे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की नानक गुण गावे।
सतगुरु जी तुहाडा पाना मिठा है, सतसंगी पानी दीयां गल्लां करनियां सौखियां पर पाना मनना बड़ा औखा। आप सारा यही आखिया भी गुरु का पाना है, भी गुरु का पाना है, पर सत्संगी जिस घरों जी चला जाए उन्होंने पूछिए भी पाना मनना कितना औखा है। पर प्यारी हो जदों आ बाणी सुनते हैं, बाणी विच कहण वालियां दीयां बातां सुनते हाँ, फिर पाना मनण दा बल भी आ जाता है। ऐवी थोड़े होना आखिया तुसी श्री अमृतसर साहब जाते हो, उस गलियारे विच सब तो उच्ची इमारत है बाबा अटल राय जी। जदों गुरु हरगोबिंद पातशाह जी का इतिहास पढ़ी उन्हें आखिया जिहड़ा इत्थे मत्था टेकेगा उन्होंने भाना मनण का बल आया। क्यों? शायद जिहड़ा इत्थे नमस्कार करेगा इस उच्चे स्थान का इतिहास पढ़ेगा तो पढ़ के वो दिल से कोई असर होगा, मनेगा। बाबा अटल राय जी गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के सुपुत्र थे। जदों अपने मित्रां नाल खेडदे ने ते बड़े प्यारे लगदे। एक उन्हां दा मित्र है मोहन, मोहन नाल उन्हां दा प्यार बहुत है। एक दिन मोहन आया है, सेवादार भेजते ने जा भी वेख के आ, मोड़ क्यों नहीं आया। जदों सेवादार मोहन के घर गया कि वेखे इत्थे बहुत सारे लोग रोग रला रहे,
क्यों वे की हो गई, क्यों रोते? आखिया जी जदों मोहन कल बाबा जी को मिल के आया ते आंदिया ये सप लड़ गया ते ये मर गया। हुण सेवादार बड़ा उदास, बाबा जी इस नाल प्यार बहुत करते हैं ते मैं किवें जाके दसांगा, वो किवें सुणनगे? जिहदे नाल सब तो वध प्यार होई उठ गया तुहाडा। सेवादार उदास जिहा हो के ते बाबा जी दे अगे जा खड़ोता, की कहता है? कहता मोड़ ने ते हुण कदे भी नहीं आउणा, मोड़ मर गया, शरीर छड्ड दित्ता। बाबा अटल राय जी झट उठते ने, मोड़ तू इंज बाजी मार के नहीं जा सकता। उठे उहदे घर वाल नूं दौड़ पए, मगर ही मित्र दौड़े जाते। जदों उहदे दरवाजे ते पुजे, मोहन दे माता पिता वेख के रो करलाउण लग पए। तुहाडे घरों मंग के लिया सी, साडा बुढ़िया का सहारा सानू छड्ड गया, कित्थे है? अंदर वेला। बाबा अटल राय जी अंदर जाते ने ते मोहन दे गल विच पांदे ने खूंडी ते उहनूं खिचण लग पैंदे ने। मोहन उठ, इस तरह तू बाजी मार के जा नहीं सकता। जदों किसी बैराग में बाबा अटल राय ने आवाज मारी, सत्संगियों मोहन का उठ के बह गया। गुरु सुपुत्र ने जदों बोलते ने इन्हां दी दरबार तक सुनी जाती है, रौला पै बाबा अटल राय ने मोहन नूं जिंदा कर दिता। जदों बाबा जी घर आए ते माता जी कहती, लाल जी घर दे अंदर पैर ना पाओ, पहला अपने गुरु पिता नूं मिल के आओ, जाओ पहला पिता जी नूं मिल के आओ। भावना बनायो, कित्थे बैठे सन गुरु पिता? श्री अकाल तख्त जिथे बढ़िया होया। इस तरह ही जिस तरह गुरु ग्रंथ साहिब जी बैठे, असी तुसी बैठे, संगतां बैठियां होंगी। बाबा अटल राय जी मथा टेक के बह जाते हैं ते गुरु हरगोबिंद पातशाह की कहते, कहते लाल जी अज तो तुसां कीता वो चंगा नहीं कीता। दस असी कौन हुंदे आ किसे नूं मारन वाले, असी कौन हुंदे आ किसे नूं जिंदा करन वाले। तू चंगा नहीं कीता, मोड़ ने ते हुण जिंदा ही रहना है, मोड़ ने जिंदा रहना है। पुत्र तू रब दे भाणे विच दखल दे दिता, मोड़ जिंदा ही रहेगा। मोड़ दे बदले जा मैं मर जाता हाँ, जा तू मर जा। अपने दोनों विचों एक जाने नूं शरीर छड्डना पैंदा, जां मैं शरीर छड्ड देता जां तू शरीर छड्ड दे। तू तां रब दे भाणे विच दखल दे दिता। बाबा अटल राय जी मत्था टेकदे ने, फिर श्री हरमंदर मत्था टेकिया। माता कौला दा सरोवर तुसीं कहंदे, इत्थे इशनान कीता ते जिथे हुण अस्थान बनया होया है ना, चिट्टी चदर लैके इत्थे लेट गए। थोड़ी देर बाद रौला पै गया, बाबा अटल राय जी शरीर छड्ड गए। बाबा अटल राय शरीर छड्ड गए। माता पिता सारी संगत गुरु महाराज दौड़े जाते। ये नहीं कि अपने बच्चे नाल प्यार नहीं, बहुत प्यार है, पर ओहदे भाणे नूं मनना है।
सारा परिवार आया बैठा सी, सांढू साईं दास कोल बैठा। कहता महाराज बड़ा ही दुख होया, अटल राय शरीर छड़ गया। महाराज कुछ बोले, वो कहता महाराज बहुत दुख होया, ऐसा पुत्र घरों चला जाए। गुरु जी कहते साईं दास जमीन पे लकीर ना मार, कच्ची मिट्टी भुंजे बैठे से, उन्हें हाथ नाल लकीर मारी। महाराज कहते इनू बटा दे, उन्हें हाथ मार के लकीर बटा दे। गुरु जी कहते साईं दास एक गल दस, जदों तू लकीर पाई सी तैनू कोई खुशी होई? जदों तू लकीर मटा दी तेनू कुछ दुख होया? वो कहता महाराज ये तो लकीर ही सी, आपे ही मैं वाइया सी, आपे ही मैं मटाइया। महाराज कहते साईं दास ओए तकदीरां भी लकीर ही ने, आपे रब बांधा है, आपे मटा देता है। ये तकदीरां भी तो लकीर ही ने, आप ही रब जी पांदे ने, आपे मटांदे ने। आपे मेरे घर उस लाल नूं भेजिया ते उस रब ने आप ही बुला दिया। किहदे नाल दुख ते किहनूं उलावे ने, पर ये मेरा पुत्र सपुत्र है, इन्हें भाणा मन के बताया है। जिहड़ा इत्थे मत्था टेकेगा उन्होंने भी भाणा मनण दा बल आएगा। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बोल सुनाना, जिसकी वस्त सोई ले जाएगा और उसके किसे से कीजे, जिन्हें भेजिया उन्हें बुला लिया, जिहदी चीज सी वो लै गया। दस किहदे नाल गिले शिकवे करिए? आओ शरधा ते प्यार नाल सुनिए। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार मैनू जिवें चेतन सिंह होना दसिया वो आ रहे हैं, तो उन्होंने उड़ीक विच मैं तुहानूं ये शब्द सुना रहा ना, वो भी आप संगतां दे दर्शन करनगे। जिसकी वस्त सोई ले जाएगा, सोई ले जाएगा, सोई ले जाएगा। रोज किसे सो कीजे, जिसकी वस्त सोई ले जाएगा, सोई ले जाएगा, सोई ले जाएगा। जिसकी वस्त सोई ले जाएगा, सोई ले जाएगा, सोई ले जाएगा। जिसकी वस्त सोई ले जाएगा, सोई ले जाएगा, सोई ले जाएगा। रोज किसे सो कीजे, रोज किसे सो कीजे। जिसकी वस्त सोई ले जाएगा, सोई ले जाएगा, सोई ले जाएगा। ना गया, ना गया,
रोज किसे सूखी गए, रोज किसे सूखी गए, जिसकी मस्त सोई ले जाएगा, सोई ले जाएगा, सोई ले जाएगा, जिसकी मस्त सोई ले जाएगा, सोई ले जाएगा, सोई ले जाएगा। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅੜਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੜਤ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ, ਚੰਗੀਆਂ इस समाज के रह के किरत करके चंगी कमाई करके चंगा नाम कटिया। गल पहला मैं गल करन तो पहला साडे महान अकाल तख्त ते जैदार हरमन सिंह जी आए हैं, उन्होंने बहुत सत्कार। गल इस तरीके है कि जो कोई संसार से आता है उन्हें चले भी जाना, पर जो कोई चंगा बंदा जाता है जिन्हें किरत करने वाला जाता है वो पिछे वो अपना परिवार भी चंगा कोई
ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਿਰਤ ਵਾਲਾ, ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖਾਸ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟੜਾ, ਮੇਰੇ ਆੜਤੀ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜਣਤਾਈ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰਮਤਾਈ, ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਅ ਵਧੀਆ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਬੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਬਣਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਰੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਯਾਤੀ ਜਗ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿਰ ਰਹਿ। ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ। ਕੋਈ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਆਸਨ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੀਤੇ ਬੈਠ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਸਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਬੈਠੇ ਤੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, चाहे वो पशु है, पंछी है, पेड़ पौधा है, रुख है, नदी है, नाला है, सूरज है, चंद है, धरती है, जिहदा जन्म होया। गुरु नानक साहब कहते सब दुनिया आवन जावनी, सारी दुनिया आउण वाली है, जान वाली है। क्यों? क्योंकि दुनिया आउण वाली है, जिहड़ी दुनिया आउण वाली है वो जान वाली है। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज को पूछिए, वो कहते जो उपजियो सो बिन सका। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज को पूछिए, वो कहते जो जन्म है सो जन हो मुआ। जिहदा जन्म हो गया उन्हें खत्म होना ही होना है। पहाड़ों की कितनी उम्र है? एक आर्टिकल अखबार दे विच लग्या सी काफ़ी साल पहला, उहदे विच लिखिया सी कि 25 करोड़ साल पहला ये जिहड़ी उत्तरी भारत की धरती है, इत्थे भी समुंदर सी। आ हिमालय पर्वत है, इहदा जन्म होया है और इन्हें खत्म भी होना है, इन्हें खत्म भी होना है। धरती का जन्म होया, धरती से खत्म भी होना है। फिर एक सवाल पैदा होता है कि रहना की नहीं, मन च भावना या ख्याल पैदा होता है, सवाल पैदा होता है कि चंद ने नहीं रहना, सूरज ने नहीं रहना, तारियां ने नहीं रहना, जानवरों ने नहीं रहना, सप कच्छू कुम्मा 300 400 साल उम्र बतीत करते हैं, इन्होंने भी नहीं रहना, मनुखा ने भी नहीं रहना। कि रहना की नहीं? तो महाराज कहते हैं, कहते रहना उन्हें है जिहदा जन्म नहीं होया। जिहड़े नास्तिक फलसफे है वो कहते हैं कि जिहदा जन्म ही नहीं होया उसकी होंद ही नहीं है। पर धार्मिक फलसफा जिहड़ा वो कहता है कि नहीं, एक हस्ती है जिहदी होंद है लेकिन उसका जन्म नहीं है, और वो हस्ती है अकाल परमेश्वर दी, जिन्हों तुसी रब कह दो, गॉड कह दो, ईश्वर कह दो, वाहिगुरु कह दो, अल्लाह कह दो, अकाल पुरख कह दो।
परम सच, अल्टीमेट रियलिटी, अंतम सच वो अकाल पुरख है, वो जी होंद है तू होवनहार, लेकिन इसका जन्म नहीं। पर कई कहते हैं कि रब जन्म लैंदा है, ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਬ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਰੱਬ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਦਾ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਨਰ ਕਰਤ ਕਚਰਾਇਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਨਰ ਕਰਤ ਕਚਰਾਇਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਲੋਕ ਕੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਾਰਾਇਣ। ਭਾਈ ਉਹ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ, ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਨਾਮ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਦ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੈ। ਫਰਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਰਨਾਂ ਕੀ ਬਖੇਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਧੁੱਪ। ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਲਾਸਟ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਿਮਰਤ ਹੋ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਥਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ।
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜੰਮਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਂगू मर गया या ਸਾਡੇ ਵਾਂगू ही मर जाना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜੇ ਬੰਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਡੁੱਬਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡੁੱਬੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੂ ਹੈ, ਤਰਨ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਾਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ सरदार जरनैल सिंह जी की विछड़ी रूह को अपने चरणों च निवास बख्शे, पिछों सारी उन्होंने परिवार संबंधियों हितुओं को भाना मनण का बल बख्शे। बहुत बहुत आप सारी संगत का परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु का पाया। राग तन परवार करिया, शब्द गावन आया, शब्द
ਉਪਰੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। नदिया फिर है जो हर हृदय सदा वसाई ब्रह्म बिंदय सदा ब्रह्मत रहे एक शब्द निवदाई नाम निधि आकार स्थिति नदिया फिर जो हर हृदय सदा वसाई जिन सतगुर नाओ ना पाइए बुझो कर विचार नानक पूरे भाग सतगुर मिले सुख पाए दुख चार महला तीजा क्या गबरो क्या बिरद है मन मुख कृष्णा भुख ना जाए गुरमुख शब्द रत्या शीतल हुए आप गुमाए अंदर त्रिपट सबको किया फिर भुख ना लगे आए नानक जे गुरमुख कहे सो परवान है जो नाम रहे दिवलाए पावने आओ बलहारी तिनको जो गुरमुख सिखा जो हर नाम ध्याए दे इन दर्शन सिखा सुन कीर्तन हर गुण रवा हर जस मन लिखा हर नाम सनाही रंग स्यो सब दिल लिखा अन तन सुहावा सु शरीर पान है जितै मेरा गुर कहे लिखा हर नाम सनाही रंग स्यो सब दिल लिखा अन तन सुहावा सु शरीर पान है जितै मेरा गुर कहे लिखा। वाहिगुरू जी का खालसा